أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم ولا يشعرون صدق الله العظيم اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہے اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے وہ سخت سزا کے مستحق ہیں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عروۃ العسقیٰ کے یہ دوسرے ہفتے میں آپ تمام سامعین اور ناظرین کا استقبال ہے محترم ناظرین ابھی آپ کے سامنے جو آیات ماہ ترجمہ پڑھی گئی ہیں وہ سورہ بقرہ کی آیت 6 سے 9 تک کی آیات ہیں ان آیات کی تفصیل میں جانے سے پہلے آئیے ہم پچھلی آیات کا خلاصہ دیکھ لیں تاکہ ان آیات کو سمجھنا آسان ہو جائے اس سے پہلے سورہ بقرہ کی 2 کلاسز ہمارے مکمل ہو چکی ہیں جس میں ٹوٹل 5 آیات ہماری مکمل ہوئی اس سورے کے سلسلے میں ہم نے اس کی فضیلت کے سلسلے میں جانا اس کے شان نزول کے سلسلے میں جانا اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے اس وقت اس آیت 5 تک کی تفصیلات ہم نے دیکھی اس میں ہمیں جو بات ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ یہ سورہ مدینہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک ہے اور یہ سورہ سب سے بڑی سورتوں میں سے ایک ہے اس میں مختلف احکامات ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ سنام القرآن اور ذروۃ القرآن ہے سنام اور ذروہ ہر چیز کے اعلیٰ و افضل حصے کو کہا جاتا ہے اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت 80 فرشتے اس کے جلو میں نازل ہوتے ہیں ناظرین کرام ابتدائی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی کتاب ہدایت اور ہر شک و شبے سے بالاتر ہونا اس میں بیان کیا پھر اس کے بعد اس خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ بھی اس میں آیا جنہوں نے اس کتاب ہدایت سے پورا فائدہ اٹھایا جن کو قرآنی اصطلاح میں مومنین اور متفقین کا لقب دیا گیا اور ان کی مخصوص صفات و علامات بھی اس میں بتائے گئے جس میں 5 صفات کا تذکرہ ہم نے اس میں دیکھا غیب پر ایمان لانا نماز کا قائم کرنا دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا اور آسمانی ساری کتابوں پر ایمان لانا اور آخرت پر یقین کرنا یہ 5 وہ صفات ہیں جس کا تذکرہ اس سے پہلی 5 آیتوں کے اندر تفصیل کے ساتھ کتاب برحق ہونے کی علامت کے ساتھ اس میں واضح طور پر ہمارے سامنے آیا یہ تھا وہ خلاصہ جو پچھلی 2 کلاسز کے اندر ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا تھا تو آج آئیے ہم آپ کے سامنے جو مزید جو آیات آج آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں وہ آیت 6 سے 9 تک کی آیات ہیں یعنی ٹوٹل 4 آیات ہیں جس پر آج ہم سہرس انشاءاللہ گفتگو کریں گے یہاں پر جہاں یہ 4 آیتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہاں سے سلسلہ بالکل چینج ہو گیا ہے یہاں سے اللہ رب العالمین ان انکار کرنے والوں کا ذکر لگاتار 15 آیات تک اس میں ذکر کرتا ہے جنہیں ان ہدایات کو قبول جنہوں نے نہیں کیا بلکہ انکار و عناد سے پیش آتے رہے اور انکار کرنے والوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے پہلی 2 آیتیں یعنی آیت 6 اور 7 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس گروہ کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے کھل کر انکار اور مخالفت کا راستہ اختیار کیا جن کو قرآن کی اصطلاح میں کافر کہا گیا ہے دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنے اخلاقی پستی اور دنیا کی ذلیل اغراض کی بنا پر یہ جرت بھی نہ کر سکے کہ اپنی ضمیر کی آواز اور دلی عقیدے کو صاف طور پر ظاہر کر دیتے بلکہ دھوکے اور فریب کی راہ اختیار کی مسلمانوں سے کہتے کہ ہم مسلمان ہیں قرآن اور اس کی ہدایات کو مانتے ہیں
तुम्हारे साथ हैं और दिलों में इनके कुफ्र और इनकार बसा हुआ था। कुरान कहता है कि कुफ्फार की मजलिसों में ये जाते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे अकीदे और तुम्हारे साथ हैं, मुसलमानों को धोखा देने और इनके राज मालूम करने के लिए हम उनके साथ मिले हुए हैं। इस गुरोह का नाम कुरानी इस्तिलाह में मुनाफिक के नाम के साथ याद किया गया है। ये आयत नंबर 8 से लेकर लगातार मतलब जो है 13 आयात तक मुश्तमिल ये मतलब जो है वो जिक्र है जो मुनाफिकीन के ताल्लुक से अलग अलग मतलब जो है सिफात और अलामात और निशानियों और मतलब जो है मिसालों के जरिए से इसमें तस्करा आया है। तो सामीन इकराम, यहाँ हम जहाँ चल रहे हैं वहाँ आयत को हम अपनी इस की तरफ चलते हैं जहाँ आज आयत नंबर 6 से लेकर 9 तक का तस्करा है। आइए पहले हम दो आयतों का तस्करा हम करते हैं। पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत नंबर 6 और 7 में यूं इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कुछ इस तरह है, जिन लोगों ने इन बातों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया उनके लिए यकसां है, ख्वाह तुम इन्हें खबरदार करो या न करो, बहरहाल वो मानने वाले नहीं है। अल्लाह ने इनके दिलों और इनके कानों पर मोहर लगा दी और इनके आंखों पर पर्दा पड़ गया, वो सख्त सजा के मुस्तहक हैं। इन दो आयतों के तर्जुमे को पढ़ने के बाद मुझे और आपको अंदाजा हो रहा है कि इस स्क्रीन पर भी आप मतलब जो है लफ्जी तर्जुमे के साथ देख रहे हैं, नीचे मुकम्मल तर्जुमे के साथ भी इसकी आप तफसील देख रहे हैं। इनके तर्जुमे को पढ़ने के बाद मुझे और आपको जो मालूम हो रहा है कि इन आयतों में 4 बातों का तस्करा किया गया है। एक है इनकार करने वालों का तस्करा, दूसरा है इनकी इनकार के नतीजे में दुनियावी सजाएं और इनके दिलों पर मोहर लगा देना, और तीसरा है आखिरत में इनके लिए सख्त सजा, और चौथा इन्हीं आयात के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरह से तसल्ली देकर उस मिशन को तकमील तक पहुंचाने का दर्स इसमें दिया गया। ये 4 बातों का तस्करा है जो इन दो आयतों के अंदर मुझे और आपको दिया है। आइए हम एक एक करके इसके नुकात को खोलेंगे और समझने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। ये इनकार करने वालों का जो जिक्र है उस गुरोह का जिक्र है जो कुफ्र में मुब्तला है। कुफ्र के लग़वी मानी है छुपाना या ढांपना। शरीयत की इस्तिलाह में कुफ्र से मुराद अल्लाह और अल्लाह के रसूल और दीन इस्लाम के किसी बुनियादी अकीदे या हुक्म का इनकार करना या उसे न मानना कुफ्र कहलाता है। नाशुक्री और मोहसिन के एहसानात को न मानना भी कुफ्र कहलाता है। और इससे पहले जो 5 आयात हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर जो मोमिनीन के सिफात बताए गए थे, उन मोमिनीन के सिफात को न मानना भी दरअसल एक तरह का कुफ्र है जो यहाँ बताया गया है। सामीन इकराम, कुफ्र एक ऐसी हालत है जिसमें इंसान अल्लाह की हिदायत से मुंह मोड़ लेता है। जो झुटलाता है अल्लाह के कुरान मजीद में सबसे बड़ा गुनाह करार दिया गया है, क्योंकि इंसान को दायमी नुकसान और जहन्नम की सजा की तरफ ले जाता है। कुफ्र के मुख्तलिफ अकसाम का जिक्र कुरान मजीद में आता है। आइए सबसे पहले हम इन अकसाम की तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद इसके असबाब की तरफ चलें ताकि इन आयतों को समझना हमारे लिए आसान हो जाए। तो कुफ्र के मुख्तलिफ अकसाम हैं जिन्हें उलमा कराम कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान किए हैं। ये अकसाम इंसान के कुफ्र की नौयत और इनके दायरे को वाज़े करती हैं। ये 8 किस्म के अकसाम हैं जिनको कुरान और हदीस की रोशनी में बताया गया है। सबसे पहली किस्म जो कुफ्र में लोगों को मुब्तला करती है वो पहली किस्म है कुफ्र व इनकार, जो अकीदे के एतबार से उनके अंदर खामी पैदा हो जाती है, उनके अकीदे में खलल पैदा हो जाता है, जिसका शुक्र सूरह मायदा आयत नंबर 10 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी निशानदेही कर दी, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, और जो लोग कुफ्र करते हैं और हमारी आयत को झुटलाते हैं वही जहन्नमी हैं। इस आयत के जरिए से वाज़े तौर पे बता दिया गया कि जो लोग अकीदे में कुफ्र रखते हैं हमारी आयत को वो लोग झुटलाते हैं और इसी के नतीजे में वो जहन्नमी होते हैं। दूसरे किस्म का जो कुफ्र है वो कुफ्र जुहूद के नाम से याद किया गया है, यानी नाशुक्री करना कुफ्र है। सूरह नहल में इसकी तफसील मतलब जो है 83 में यूं इरशाद फरमाई गई कि उन्होंने अल्लाह की नियामत को पहचानने के बाद इनकार किया और कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया। ये वो नाशुक्री है कि सब कुछ जानने के बावजूद, मानने के बावजूद उन्होंने इनकार हक कर दिया, इसलिए वो कुफ्र जुहूद में मुब्तला हो गए। इसी बात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इस तरह वाज़े फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे का तमाम अमाल उसके लिए है लेकिन शुक्रगुजारी मेरे लिए है।
तीसरे किस्म का कुफ्र अगर अहादीस और आयात करीमा के रूह से देखें तो वहां कुफ्र अनाद यानी जिद और हट धर्मी की बिना पर कुफ्र में मुब्तला होते हैं। ये एक भी किस्म मतलब बताई गई, जहां इसका जिक्र मुझे और आपको सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 30 में मतलब जो है बड़ी तफसील के साथ मिलता है। जब इनके पास हक आया तो कहने लगे कि ये जादू है, हम और इसके मुनकर हैं। नाज़रीन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात का मतलब जो है जिक्र यानी हर धर्मी की बिना पर जो लोग कुफ्र में मुब्तला होते हैं उसकी मिसाल देते हुए हदीस मुबारका में यूं इरशाद फरमाया, सबसे ज्यादा हसद और जिद करने वाला वो है जिसके दिल में ईमान की रोशनी न हो। चौथे किस्म की हम लोग आते हैं कुफ्र की तरफ, तो चौथे किस्म का कुफ्र जो है वो कुफ्र तकजीब यानी झुटलाने के साथ मतलब जो है इजहार होता है। तो ये किस्म में सूरह सजदा आयत नंबर 3 में इसकी निशानदेही की गई है। वो इस तरह की गई है कि ये लोग कहते हैं कि इस शख्स ने इसे खुद घर लिया है, नहीं बल्कि ये हक है और तेरे रब ही की तरफ से ताकि तू मुतनब्बह करे। सामीन इकराम, इसी बात की वजाहत के लिए हम मतलब जो है आया हदीस करीमा की तरफ जाएं, वहां अल्लाह ताला फरमाता है जो शख्स मेरे लाए हुए किसी हुक्म को झुटलाए वो ईमान से बाहर हो गया है। ये वो अकसाम है जो आयात और अहादीस के जरिए से मेरे और आपके सामने आते हैं ताकि इसकी मालूमात के साथ मुझे और आपको ये कुफ्र की सही मतलब जो है निशानदेही तफसील के साथ मैसर आती है। पांचवें किस्म का जो कुफ्र है वो कुफ्र इस्तेहजा यानी मजाक उड़ाने की मद में आता है। यानी ये जो कुफार होते हैं वो अल्लाह के अहकाम और हिदायत को मजाक बना लेते हैं। उसका तस्करा सूरह तौबा आयत नंबर 65 में किया गया कि कुफार के सिलसिले में कहा गया कि क्या तुम अल्लाह की आयत और इसके रसूल का मजाक उड़ाते हो। हदीस मुबारका में इस बात की वजाहत यूं की गई, फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो शख्स दीन के किसी भी हुक्म का मजाक उड़ाए वो कुफ्र के करीब होगा। सामीन इकराम, यहाँ मतलब जो है पांच मतलब जो है सिफात आए। अब हम छठी सिफत की तरफ चलें, वो है कुफ्र शिर्क यानी शक में मुब्तला हो जाना और शक में मुब्तला रहना, ये भी एक तरह का कुफ्र है। यहाँ इस बात की वजाहत के लिए सूरह सबा आयत नंबर 54 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ये लोग आखिरत के बारे में शक रखते हैं और हमने इनके दिलों पर शक पैदा कर दिया है। इस बात की वजाहत के लिए दलील के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में वाज़ेह तौर पे फरमाया यूं कि जो शख्स दीन के किसी भी मामले में शक करे इसके ईमान की तकमील नहीं हो सकती। तो ये बात वाज़ेह हो गई है कि किसी भी मामले के अंदर शक करना ईमान की तकमील नहीं हो सकती। और सातवां किस्म का जो कुफ्र है वो कुफ्र शिर्क है, जो सूरह माइदा आयत नंबर 72 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस शिर्क के कुफ्र के सिलसिले में वजाहत दे दी। वो यूं इरशाद फरमाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो शख्स अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है वो जन्नत से महरूम कर दिया जाएगा, इसका ठिकाना जहन्नम है। इस बात को मजीद वदाहत के लिए आया हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं शिर्क को माफ नहीं करता और जो शख्स मेरे साथ किसी को शिर्क शरीक ठहराएगा इनके तमाम अमाल जाया कर दिए जाते हैं। और आठवां किस्म का जो शिर्क है वो है निफाक की शक्ल में, जो अगली जो आयतें हमारे पास 8 और 9 है उसकी तफसील में हम उसको देखेंगे। ये 8 किस्म के अकसाम हैं जो कुफ्र की मद में देखे जाते हैं, जो इन आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह तौर पे फरमाया कि बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र अपना लिया है इनके सिलसिले में ये मतलब जो है 8 अकसाम है जो इस तरह से वो अपने कुफ्र में उसको शामिल करते हैं। नाज़रीन इकराम, ये थे कुफ्र के अकसाम। तो अब आइए हम आखिरी हक जानने के बाद, ये अंबिया कराम के मबऊस होने के बाद आखिर इंसानों में कुफ्र में मुब्तला होने की वजूहात क्या है उस पर भी एक रोशनी मुझे और आपको डाल लेनी चाहिए, ताकि बात को वाज़ेह तौर पर समझने में और आयात की गहराई में जाने में मेरे लिए और आपके लिए आसानी मैसर आ सके। यहाँ कुफ्र में मुब्तला होने की कई वजूहात हमारे सामने आती हैं, मगर वक्त के इख्तिसार के साथ अगर देखा जाए तो फिर गुफ्तगू मतलब जो है हम शुरू करें तो उसमें वजूहात मेरे और आपके सामने मुख्तसरन मतलब जो है इस तरह आती हैं। इनमें मतलब जो है पहली वजह जो बताएगी वो किताब सुन्नत से मुझे और आपको मिलती है, और वो ये है कि सबसे पहली वजह जो इस माशरे के अंदर कुफ्र में लोग मुब्तला हो गए वो इस वजह से कि ये न जानते थे कि दीन का इल्म क्या है, इससे न आशना थे, और मतलब जो है इनका हाल ये था कि वो इल्म के मामले में जानने की
टको दो भी नहीं करते थे, और मतलब जो है लगे लपेटे अलल टप्पू मतलब जो है इसी इसमें लगे रहते थे। इसी वजह से पहली वजह इनकी जहालत की बिना पर इनके अंदर कुफ्र जो है उभर कर सामने आता है। सूरह यूनुस आयत नंबर 39 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी तरफ इशारा करके यूं इरशाद फरमाया, तर्जुमा कुछ इस तरह है, असल ये है कि जो चीज इनके इल्म की गिरफ्त में नहीं आती और जिसका माल भी इनके सामने नहीं आया, इनको उन्होंने खामखा अटल बच्चू झुटलाया। इसी तरह तो इनके पास पहले के लोग भी झुटला चुके हैं, फिर देख लो कि उन जालिमों का क्या अंजाम हुआ। यानी हर दौर के अंदर कुफ्र की जो हालत मतलब माशरे के अंदर देखी गई, उसकी वजह यही है कि उनके अंदर ये जहालियत कूट कूट कर भरी हुई थी, और इस जहालत की दूरी न होने की बिना पर इनके अंदर इस चीज को कायम मतलब जो है देखा गया है। दूसरी वजह मतलब जो है जो सामने आती है वो है इनका तकब्बुर में मुब्तला हो जाना, गुरूर में मुब्तला हो जाना, जिसकी बिना पर वो इस कुफ्र में मुब्तला रहते हैं। तो सूरह फुरकान आयत नंबर 60 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, उन लोगों से जब कहा जाता है कि इस रहमान को सिजदा करो, तो कहते हैं कि रहमान क्या होता है, क्या बस जिसे तू कह दे कि इसको हम सिजदा करते फिरें। यानी ये वो तकब्बुर है जिसका तस्करा कुरान के सफ़ात को उलट कर देखें तो वहां मुझे और आपको फिरआउन का तस्करा मिलता है, हामान का तस्करा मिलता है, नमरूद का तस्करा मिलता है, जिनके सामने कहें मूसा अलैहिस्सलाम मतलब जो है कहें कहें मतलब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके सामने इजहार हक का ऐलान कर देना और दलाइल के साथ उनके सामने मामलात को पेश कर देना, मगर उसके बावजूद भी वो तकब्बुर ही पर अड़े रहे। इसी वजह से उन्होंने राह हक को तलाश करना, इसके करीब आना और इसको पाने में हमेशा मतलब जो है पीछे रह गए और अजाब के मुस्तहक करार पाए। ये वो मतलब दूसरी वजह है जो इनके तकब्बुर की वजह से एक कुफ्र में मुब्तला हो जाते हैं। नंबर तीसरी वजह मतलब जो है जो मालूमात के साथ मुताल्लिक़ के साथ मेरे और आपके सामने आती है, वो ये है कि दुनिया की मोहब्बत ख्वाहिशात को आखिरत पर तरजीह देना भी इंसान को कुफ्र में मुब्तला कर देता है। और इन लोगों की तरफ अगर हम नजर डालें तो इन लोगों के अंदर मोहब्बत और ख्वाहिशात नफ्स और आखिरत को मतलब जो है दुनिया पर तरजीह इन्होंने मतलब देने की बजाय इन्होंने दुनिया को तरजीह दी, इसी वजह से कुफ्र में मुब्तला हो गए। इसकी मतलब जो है वजाहत के लिए सूरह इब्राहिम आयत नंबर 30 की तरफ चलें 3 की तरफ चलें तो वहां मुझे और आपको यूं अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी वजाहत करते हुए यूं इरशाद फरमाया, तर्जुमा कुछ इस तरह है, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की जिंदगी को आखिरत के मुकाबले में पसंद कर लिया है, इस वजह से वो कुफ्र में मुब्तला होते हैं, इसी वजह से उन्हें हक्कानियत नजर नहीं आती, तमा अल्लाह की मतलब जो है निशानियों को वो मतलब जो है देखते नहीं है, इस वजह से कुफ्र में मुब्तला रहते हैं। चौथी वजह मतलब की तरफ चले तो वहां चौथी वजह जो नजर आती है वो ये है कि नफसानी ख्वाहिशात के गुलाम ये लोग बन जाते हैं और इसी वजह से ये कुफ्र में मुब्तला हो जाते हैं। सूरह फुरकान आयत नंबर 43 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी इसी बात को मतलब जो है दलील बनाकर यूं इरशाद फरमाया, क्या आपने उस शख्स को देखा जिसने अपने ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया है, इसी वजह से उनकी जिंदगियों का यह हाल है कि वो अपने ख्वाहिशात के पीछे लगे हुए हैं और इन्हीं ख्वाहिशात की तकमील में वो अपना मकसद अजीम उन्होंने खो दिया है, गफलत में डूब गए हैं और गुमराह रास्तों में मतलब जो है वो खो गए हैं। और पांचवी मतलब जो है वजह जो मुझे और आपको नजर आती है इस कुफ्र की वो है तकलीद परस्ती, यानी आबाओ अजदाद माशरा या किसी खास मतलब गुरेह की अंधी तकलीद इंसान को गुमराह कर देती है और इंसान मतलब जो है इसमें गुम हो जाता है। इंसानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तदब्बुर करने की तरफ दावत दी है। कुरान मजीद के अंदर जा बजा आयतें इंसानों को बार बार जो तलखीन हक करती हैं वो गौर और फिक्र करने सोच विचार करने और एक दूसरे को मतलब जो है मिलकर उस पर गौर करने और तहकीकात करने की तरफ मतलब जो है बार बार मतलब जो है रुजू करने की आयत करीमा मेरे और आपके सामने आती हैं। मगर जो लोग इन पर मतलब जो है अपना दिमाग नहीं लड़ाते, इस पर कमरबंद नहीं रहते, इसी वजह से वो राह हक से भटक जाते हैं। कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 170 में अल्लाह ताला फरमाता है, जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह के नाजिल करदा अहकाम की पैरवी करो तो वो कहते हैं कि हम तो अपने बाप दादा के तरीके पर चलेंगे। छठी मतलब जो है जो वजह है वो है हक को छुटलाना, यानी जब हक इनके पास आया तो निशानियां और मतलब जो है इनके
पास आने के बावजूद ये अना और मफादात के खातिर हक को तस्लीम करने से ये लोग कतराते हैं, इसी वजह से मतलब जो है हक को झुटलाते हैं। सूरह नमल आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला फरमाता है, 14 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और जिन्होंने हक को झुटला दिया हालांकि इनके दिल इनको यकीन कर चुके थे। ये वो बातें हैं, वजूहात हैं जिसकी वजह से काफिर दीन के करीब आने से रह जाते हैं और हिदायत से दूर हो जाते हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत में फरमाया कि जिन लोगों ने इन बातों को मानने से इनकार किया इनके लिए यकसा है, खा तुम इन्हें खबरदार करो या न करो, बहरहाल वो मानने वाले नहीं हैं। इस बात को सूरह यासीन आयत नंबर 11 को मिलाकर पढ़े तो बात वाज़े तौर पर मतलब जो है खुलकर हमारे सामने आ जाती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम उस शख्स को खबरदार कर सकते हो जो नसीहत की पैरवी करे और देखिए खुदाए रहमान से डरे, इसे मगफिरत और अजर अजीम की बशारत दे दो। यानी जो लोग बात को सुनने और पैरवी करते हैं वो देखिए खुदा से डरने वाले हैं, वही लोगों को खबरदार किया जा सकता है। नाज़रीन इकराम, इस मतलब इसके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दूसरी मतलब जो है वजह हमारे सामने मतलब जो है ले आई वो ये है कि इसमें एक शुबा मतलब जो है इंसानों को पैदा हो जाता है, और वो शुबा ये है कि जिन बातों को तस्लीम करने से लोग इनकार कर चुके हैं, क्या इनको दावत देना मतलब जो है हमारा काम है या उनको यूं ही छोड़ देना चाहिए। इस बात की वजाहत मतलब जो है वाज़े तौर पर इस मतलब जो है आयत करीमा के जरिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दी गई कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ही ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है और हवास को माफ कर दे मतलब बंद कर दिया है और कुफ्र में ये मुब्तला हो गए हैं और अजाब इन पर मतलब जो है मुख्तलिफ दुनियावी और उखरवी एतबार से इन पर मतलब जो है नाज़िल करने का ऐलान कर दिया गया है, मगर इसके बावजूद भी उम्मत मुस्लिमा का जो फर्ज अव्वलीन है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अलैहिम की क़ैद के साथ इनको बतला दिया गया कि ये काम मतलब जो है लगातार आपको तबलीग और तालीम और इस्लाह और खल्क की कोशिश का सवाब बहरहाल मिलेगा। यही वो काम है जो आपको लगातार मतलब जो है करने की तलकीन की गई है। इसके बाद मतलब जो है देखें तो इस कुफ्र के जिक्र के बाद इस मतलब जो है तस्लीय रसूल और मतलब जो है मशन की तरफ निशानदही करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन इन बुनियादी उमूर जिसका जिक्र पिछली आयतों में आया है कि रद्द करने के नतीजे में अपने लिए कुरान के पेश करदा रास्ते के खिलाफ दूसरा रास्ता पसंद कर लिया, तो अल्लाह ने इनके दिलों और कानों पर महर लगा देने का इस आयत में जिक्र किया गया है। कुरान मजीद में महर लगाने का जिक्र बहुत सारे मुकामात पर आया है। नाज़रीन कराम, जो इंसान के दिल, कानों और आंखों पर अल्लाह ताला की तरफ से लगाई जाने वाली महर का बयान किया गया है। ये दुनियावी सजाओं के तौर पर यहाँ पे जिक्र है कि दुनिया में इनको जो सजाएं दी गई जाती हैं वो कुफ्र करने वालों के लिए दुनिया में इस तरह महर लगा दी जाती है। इसके नतीजे में इस्लाह हाल की तौफीक सल्ब कर ली जाएगी। इंसान आखिरत का हिसाब किताब से बेफिक्र होकर नाफरमानी और गुनाहों में वो बढ़ता ही चला जाएगा। इसकी बुराई का एहसास भी इसके दिल से जाता रहेगा और इस महर के नतीजे में लगने के नतीजे में नसीहत हिदायत को सुनने की सलाहियत खो देगा और हक बात को सुनकर भी इस पर गौर नहीं करेगा और इसे रद्द कर देगा और आंखों पर महर यानी मतलब जो है इसकी आंखें हक देखने के काबिल नहीं रहेंगी, वो अल्लाह की निशानियों को देखकर भी अंधे बने रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दिल अंधे हो जाते हैं न कि आंखें, और जब दिल अंधे हो जाते हैं तो हक को पहचानने की सलाहियत खत्म हो जाती है। यही वो सलाहियत है जब इंसान के दिल पर मोहर लग जाती है। इसी बात की मजीद तफसील बताते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान दुनिया की मोहब्बत और ख्वाहिशात में गुम हो जाता है तो इनके दिल पर मोहर लग जाती है। इसके बाद न नसीहत असर करती है और ना ही कोई बात इनको समझ में आती है। मजीद मतलब जो है वाज़ेह मतलब जो है बताते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहते हैं और इनकी आयत पर गौर नहीं करते, अल्लाह इनके दिलों को मोड़ देता है और वह हक को देखने से महरूम रह जाते हैं। इन आयत करीमा और अहादीस करीमा को मतलब जो है हम जमा करके देखें तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह तौर पर फरमाया, जो हक की तरफ आगे बढ़ने के रुझानात नहीं रखते, इसके सिलसिले में गौर व फिक्र नहीं करते, हक बात को तस्लीम नहीं करते और सिफात मोमिनीन अपने अंदर पैदा नहीं करते, तो इनके दिलों को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कुफ्र के नतीजे में इन पर मोहर लगा देता है। तो इनकी दुनियावी और उखरवी सजाएं क्या क्या होंगी,
आइए मतलब जो है आयत के रो से हम इसको देखेंगे। दुनियावी सजाओं के एतबार से पहली सजा तो मुहर लगाना था। दूसरी सजा सूरह ताहा आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा इसके लिए दुनिया में तंग जिंदगी अता की जाएगी। और सूरह आराफ आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला यूं इरशाद फरमाता है कि हमने इनके इनकार हक के सबब इन्हें हलाक कर दिया। यानी ये 3 सजाएं हैं जो दुनियावी एतबार से इनको दी जाएंगी कुफ्र करने के नतीजे में। और उखरवी मतलब जो है जो सजाएं होंगी वो सूरह निसा आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक जिन लोगों ने हमारी आयत का इनकार किया हमने इन्हें आग में डाल देंगे और जब इनके खाल जल जाएगी तो हम इनके साथ नई खाल पैदा करेंगे ताकि वह अजाब का मजा चखें। यानी ये उनकी मतलब जहन्नम की अंदर होने वाली वो कैफियत का इसमें जिक्र किया गया। दूसरा मतलब जो है जिक्र सूरह जुमर में किया गया कि इनके अमाल जाया कर दिए जाएंगे और जो लोग कुफ्र करेंगे इनके सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। और अजाब की शिद्दत का जिक्र भी मतलब जो है सूरह इंसान सूरह दहर में इस तरह किया गया है। और काफिरों के लिए हमने जंजीरों, तोख और भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। ये वो सजाएं हैं जो सूरह बकरा की इन मतलब जो है आयत नंबर 7 की मतलब जो है इसमें मुझे और आपको आते हैं, जहां अजाबुन अजीम के नाम से जिक्र किया गया है। उस तस्करे में मुझे और आपको ये दुनियावी और उखरवी मतलब जो है सजाएं मुझे और आपको मिलती हैं। इसके बाद आइए हम दूसरी दोनों दो आगे की तरफ आयतों पे चलें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगली आयतों में इरशाद फरमाता है, यानी 8 और 9 में, बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पर और इसके आखिरत के दिन पर ईमान लाए, हालांकि दर हकीकत वो मोमिन नहीं है। वो अल्लाह ईमान लाने वालों के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं, मगर दरअसल वो खुद अपने आप ही को धोखे में डाल रहे हैं और इन्हें इसका शऊर नहीं है। इनके दिलों में एक बीमारी है जिसे अल्लाह ने और बढ़ा दिया है। सामीन इकराम, ये मतलब जो है आयत करीमा जो आपके सामने पढ़ी गई हैं, इन दोनों आयतों में जिन लोगों या गुरोह का जिक्र किया गया है वो मुनाफिक गुरोह है। निफाक का मतलब है मुनाफिकत और दोरखापन या दोगलापन। इस्लाम में एक शदीद नापसंदीदा ये सिफत है जिसका इजहार कुरान मजीद में जा बजा किया गया है। निफाक दरअसल जाहिरी तौर पर ईमान का इजहार करना और दिल में कुफ्र, बुग़्ज़ या मतलब दुश्मनी छुपाना मुनाफिकत कहलाता है। मुनाफिक वो है जो ज़बान से कहता है जो वो मुसलमान है लेकिन अमल या दिल से वो इस्लाम के खिलाफ होता है। इन्हीं का जिक्र है जो इन 2 आयतों में किया गया है। मोहतरम नाज़रीन कराम, कुरान की इब्तिदा में ये मुनाफिक का जिक्र पहली बार आया है तो मुझे और आपको जरूरत इस बात की है कि इसकी इब्तिदा कैसे हुई और क्यों भी इस पर तब जो है गुफ्तगू की जाए। इसको समझना मेरे और आपके लिए जरूरी भी है ताकि आगे आने वाली लगातार जो 13 आयतें हैं इनको समझने में आसानी होगी। मुनाफिकत की इब्तिदा इस्लाम के मदनी दौर में हुई जब मुसलमानों को मक्के में तवील जुल्म सितम के बाद मदीना मुनव्वरा में हिजरत की सहूलत मिली और वहां एक इस्लामी रियासत कायम हुई तो मुनाफिकत की जड़ें इन लोगों में मिलती हैं जो इस्लाम का जाहिरी तौर पर ऐलान करते थे लेकिन दिल में दुश्मनी रखते थे। मक्का मुकर्रमा में मुनाफिकत का वजूद नहीं था। मक्का मुकर्रमा में इस्लाम की इब्तिदाई दौर में कुफ्र और ईमान के दरमियान सब फर्क बिल्कुल वाज़ेह था। या तो ये लोग खुलकर मुसलमान होते थे या खुलकर इस्लाम के दुश्मन होते थे। इस वक्त कोई मुनाफिक नहीं था क्योंकि इस्लाम कबूल करने का मतलब खुले आम जुल्म सितम का सामना करना था। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में इस्लामी रियासत का कयाम किया तो इस्लाम ताकतवर होने लगा। मदीने के कुछ लोग, खास तौर पर वो यहूदी थे, बज़ाहिर मुसलमान हो गए थे लेकिन दिल से इस्लाम के खिलाफ थे। इनकी मुनाफिकत का मकसद मुसलमानों के साथ रहकर मालूमात हासिल करना था, यानी राजों को जानना था और मामलात में दखल अंदाजी करना था और इन्हें नुकसान पहुंचाना था। सबसे मशहूर मुनाफिक अब्दुल्ला बिन अबी बिन सलूल का तस्करा आता है जो मदीने में कबीला खज़रज का सरदार बनना चाहता था लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद इनके सरदारी का ख्वाब खत्म हो गया और इसने इस्लाम को जाहिरी तौर पर कबूल किया मगर दिल में दुश्मनी ही रखी हुई थी। इसके असबाब क्या है, इस पर एक थोड़ी सी नजर डालते हुए चलें कि मदीने में इस्लाम एक मजबूत ताकत बनकर उभरा था। इस्लामी रियासत बहुत से लोगों ने सियासी और समाजी फवाइद के लिए इस्लाम का जाहिरी ऐलान किया था लेकिन दिल इनसे खाली थे। नंबर दूसरी मतलब जो है जो सबब है वो ये है कि इस मदीने में इस्लाम तेजी से फैल रहा था और दूर दूर से लोग हिजरत करके मदीने का रुख कर रहे थे। ऐसे हालात में इस्लाम के खिलाफ खुलकर बात करना खतरे से खाली न था। ये यहूदी मुशरिक समाजी दबाव की वजह से मुसलमान बनने का दावा करने लगे थे। तीसरा सबब ये था कि मदीने में ज़कात और सदक़ात की सूरत में इस्लामी माशरे के
ज़रूरत मंदों की मदद कर रहा था। ये मुनाफिकीन इस इक्तिसादी फवाइद का हिस्सा बनने के लिए इस्लाम का दावा करने लगे थे। और चौथा सबब ये था कि मदीने के यहूदी कबाइल इस्लाम के फैलाव से हसद में मुब्तला हो गए थे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत को चैलेंज करना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने ज़ाहिरी दावा इस्लाम किया और पीछे से मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की। इनकी मिसालें हमें कुरान मजीद के अंदर ग़ज़वा अहद में अब्दुल्ला बिन अबई का 300 अफराद को लेकर अलग होना मतलब जो है मिलता है। और दूसरा वाक़या वाक़या अफ़क है, जिसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर तहमत लगाई गई थी। और तीसरा है मस्जिद ज़रार की तामीर, जो सूरह तौबा आयत नंबर 107 में जिसका जिक्र किया गया है। ये वो साजिशें और चालें हैं जो ए मुनाफिकीन मतलब जो है फ़ायदा उठाने के लिए करते और पीछे से इस्लाम पर वार किया करते थे। इन आयतों में इन ग्रोहों का तस्करा है जो मदीने में इस्लाम से को साबिक़ा पेश आया था। इस सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मुनाफिकून आयत नंबर 4 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, इन्हें देखो तो इनके जस्से तुम्हें शानदार नजर आते हैं, बोले तो इनकी बातें सुनते रह जाओगे, मगर असल में ये गोया लकड़ी के कुंदे हैं जो दीवार के साथ चुनकर रख दिए गए हों। हर जोर की आवाज को ये अपने खिलाफ समझते हैं। ये पक्के दुश्मन हैं, इनसे बचकर रहो, अल्लाह की मार इन पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, इस आयत को सामने रखकर मुझे और आपको मतलब जो है इन तफसीलात के साथ जानना होगा कि खुद को चालाक और होशियार समझने वाले ये मुनाफिकीन जो हैं, ये दोनों तरफ से मुसलमानों और कुफार से फायदा उठा रहे थे, लेकिन वो अपने आप के अंजाम ही से बेखबर थे, जिसका तस्करा इन आयतों में कहा गया कि ये धोखा खुद अपने आप को दे रहे हैं और इसका शऊर नहीं है। हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे सख्त अजाब उस शख्स का होगा जिसने दिखावे के लिए अमल किया। सूरह निसा आयत नंबर 145 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, बेशक मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे और तुम इनके लिए कोई मददगार नहीं पाओगे। सामईन इकराम, इस मतलब जो है तमाम मतलब जो है बातों के निचोड़ के बाद मुझे और आपको इन चार बातों में जो बात नजर आती है वो ये है कि जिन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम और हिदायत और नसीहतों को सिफात की शक्ल में न माना, बल्कि मतलब जो है अपने आप से मतलब जो है लड़ते रहे और मतलब जो है कुफ्र में ही में मुब्तला रहे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहर लगा देगा और इनके आंखों पर पर्दा डाल देगा। और ऐसे लोगों को लोग समझते हैं कि वो मैं जो मेहनत कर रहे हैं उनकी चालबाजियां उनके काम आएंगी, मगर इसका इन्हें शऊर नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सही रुख के साथ सही बात को जानने और शऊरी एहसासात के साथ आयात करीमा के बातों को अपने अंदर जज्ब करने की सलाहियत अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।